Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about how we can take the backup of our Azure file shares, which is inside the Azure storage account. And we will also be discussing how we can consider the backup services of the Azure blobs. So let's get started. And this session is the continuation of our backup and recovery services tutorials. So in the previous sessions, we have discussed how we can take the backup of Azure virtual machines. We have also discussed that how we can take the backup of on-premises resources. We have seen the file and folder level recoveries. So these all things we have discussed so far. Mass tool also we have discussed. Now I will conclude both the topic into the single video. We will be concluding the file shares and blob shares in the single video. We don't have to make the separate video for this. So let's get started. This is very easy topic today, not very much complex to understand. What I will do, I will first create one storage account here. So here, let me create one resource group and I will create one storage. Let's keep the name app store storage 001. ये नाम दे देते हैं. This should be available. And preferred service, let's leave it. I will make it standard general purpose version 2 account in terms of performance. Here in the Azure Blob Storage, you can see there is one option, the access tier. We have already discussed about this option, and there is one option called Azure Files. So click on next. Public access, I will enable it. In case you want to secure it, then you can make it the part of service account or private endpoints. Next. In the data protection, this is related to the backup services, this portion. This portion is related to the backup service that we will discuss today. So for now, whatever default options are selected, let's leave it as it is. यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डेज टू रिटेन डिलीटेड ब्लॉब्स. अगर कोई ब्लॉब डिलीट हो गया तो 7 डेज में आप रिकवर कर सकते हो. डेज टू रिटेन डिलीटेड कंटेनर्स, अगर पूरा पूरा कंटेनर डिलीट हो गया देन यू कैन रिकवर इट विद इन 7 डेज. So these values can be changed, but we will discuss about it after the deployment of storage. तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी. Let's leave them default. Click on next. In terms of security, I will go with the default options. Then next and review plus create. Validation failed. Okay, there is one change Microsoft has conducted. पहले हम प्राइमरी सर्विस को जो है ऐसे ही छोड़ सकते थे. वी कैन जस्ट लीव दिस बॉक्स एज इट इज, बट नाउ यू कैन सी वन एस्ट्रिक हैज बीन मार्क्ड. अब इन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया है. सो यू हैव टू चूज कि आप इसको किस लिए यूज कर रहे हो, आप इस स्टोरेज को किस पर्पज से यूज करने वाले हो. तो लेट्स चूज एज्योर ब्लॉब स्टोरेज कि मैं इसको ब्लॉब के पर्पज से यूज करने वाला हूँ. देन रिव्यू प्लस क्रिएट. दिस इज वन ऑफ द रिसेंट चेंज्ड which has been approved by the Microsoft storage accounts. पहले हम इसको ऐसे ही छोड़ देते थे, आपने देखा होगा कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता था. बट नाउ वी हैव टू डिफाइन द स्पेसिफिक पर्पस. So let's wait for the deployment to happen. Done. इसको भी होने देते हैं. Yeah, done. Now I will move to the storage account. हमारा एक storage ready है. This one. I will go inside this and I will create one of the container. तो मैं इसके अंदर एक container बनाऊंगा. Go to the data storage and click on containers. And here I will add one container.
एंड आई विल गिव द नेम एज कॉन D01, कंटेनर D01 मैंने इसका नाम दे दिया, कॉन D01, दैट्स द शॉर्टकट. नाउ वन कंटेनर गॉट क्रिएटेड, द एक्सेस लेवल इज प्राइवेट. आई विल ओपन दिस, मैं इसको ओपन करूंगा एंड हियर आई विल अपलोड सम डेटा दैट इज कॉल्ड ब्लॉब, जिसको हम ब्लॉब बोलते हैं. तो मैं कुछ डेटा अपलोड करूंगा इनसाइड द कंटेनर विच इज नोन एज ब्लॉब. तो एक काम करते हैं, लेट मी अपलोड सम डेटा लाइक दिस वन. लेट्स अपलोड दिस 3 to 4 फाइल्स. अपलोड. तो मैंने कुछ फाइल्स अपलोड कर दी है इनसाइड द कंटेनर एंड दे आर इन द हॉट टीयर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हॉट टीयर ही सेट होता है स्टोरेज अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन में. तो डेटा मैंने अपलोड कर दिया है. नाउ लेट्स सी हाउ द बैकअप प्रोसीजर वर्क्स. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है, अंडर द स्टोरेज अकाउंट जो कंटेनर्स क्रिएट करते हैं हम, उन कंटेनर्स का बैकअप प्रोसेस कैसे काम करता है. लाइक वट एवर कंटेनर्स वी हैव, कंटेनर्स के अंदर हमारे ब्लॉब्स अपलोडेड है. तो इस कंटेनर का और इस ब्लॉब्स का बैकअप प्रोसेस कैसे काम करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो उसके लिए मुझे अलग से रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Just like in the virtual machines or in the on-premises backup cases, we had set up one of the recovery services vault. But when it comes to the containers inside the storage, we don't have to create any recovery service vault. By default, storage में जो भी data होता है, that is protected by the soft deletion feature. स्टोरेज में जितना भी डेटा आप रखते हो इनसाइड द कंटेनर्स, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन. सॉफ्ट डिलीट इज लाइक योर रिसाइकल बिन, कि अगर आप कोई भी डेटा डिलीट कर देते हो, सो देयर इज वन रिटेंशन पीरियड. उस रिटेंशन पीरियड के अंदर अंदर आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हो. मींस एक्सीडेंटली, गलती से अगर मुझसे कोई डेटा डिलीट हो जाता है या पूरा पूरा कंटेनर डिलीट हो जाता है, या तो मेरे से पूरा कंटेनर डिलीट हो गया और मेरे से कंटेनर के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्लॉब डिलीट हो गया, लाइक मेरे से ये फाइल डिलीट हो गई. तो अगर गलती से बाय मिस्टेक, if you accidentally delete any data, if you lost any data, so through the soft delete option there is a process to recover it back. सॉफ्ट डिलीट के थ्रू आप उसको रिकवर कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू द एज्योर स्टोरेज अकाउंट ब्लॉब्स एंड कंटेनर्स. अब वो रिकवरी कैसे हो सकती है, तो सॉफ्ट डिलीट का जो भी रिटेंशन टाइमिंग होगा, जो भी टाइमिंग आप कॉन्फ़िगर करोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट सेट अप एनी टाइमिंग, सो एट द टाइम ऑफ स्टोरेज अकाउंट क्रिएशन, अगर आप कोई टाइम सेटअप नहीं करते हो, तो स्टोरेज अकाउंट के क्रिएशन के टाइम पे बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 7 डेज, जो मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पे. तो 7 डेज का थ्रेश होल्ड लेके चलता है ये. एंड इन केस इफ एनी ब्लॉब इज डिलीटेड और इफ एनी कंटेनर हैज बीन डिलीटेड, यू कैन रिकवर इट बैक विद इन 7 डेज. आप उसको 7 डेज के अंदर अंदर रिकवर कर लोगे. That is the criteria. But if you want to reduce the time or if you want to increase the time, that is possible. वो possible है. तो पहले ये समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा. So in your storage account, आपके storage account में if you scroll down, so there is one option. It should be under the settings, settings, settings. No, it should be under protection, protection. Yeah, this one. It should be under data protection of data management. आपको यहाँ पे जाना है. You need to go to the data management, then data protection. तो यहाँ पे आप लोग जाओगे and on the right side you can see there is one option, recovery. So this is related to the soft delete. और यहाँ पे एक option है, see, enable Azure backups for blob. If you enable this option, तो यहाँ पे अगर आपको सारे blobs को रिकवरी सर्विस वॉल्ट में मूव करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सी, यू जस्ट नीड टू क्रिएट वन रिकवरी सर्विस वॉल्ट, फिर एक बैकअप पॉलिसी क्रिएट करके आप अटैच करोगे, देन यू कैन ऑल्सो टेक द बैकअप ऑफ दिस स्टोरेज इनसाइड द रिकवरी सर्विस वॉल्ट, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू गो विद द रिकवरी सर्विस वॉल्ट ऑप्शन, देन स्टिल
बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड यूजिंग द सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन। तो अगर आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट में इसका बैकअप नहीं लेना चाहते हो, स्टिल रिकवरी सर्विस वॉल्ट से हटके भी बाय डिफॉल्ट ये प्रोटेक्टेड है। सॉफ्ट डिलीट के थ्रू आप डेटा की रिकवरीज कर सकते हो, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी स्पेशल बैकअप। इन केस देर इज सम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और आपको लेना ही पड़ता है, देन स्टिल यू कैन इनेबल इट, और फिर आप अपना रिकवरी सर्विस बोल्ट यहाँ से चूज कर लो, अदरवाइज नया क्रिएट कर लो, बैकअप पॉलिसी क्रिएट करो, और जो भी आप शेड्यूल लगाओगे अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल, ऑटोमेटिकली द बैकअप विल हैपन, ऑटोमेटिकली बैकअप होते रहेगा, एंड यू कैन रिकवर इट देन फ्रॉम द रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट, फिर आप वहां से रिकवर कर सकते हो। अभी मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा हूँ। नाउ देर इज वन ऑप्शन, इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स। सो सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब्स आर इनेबल्ड, ये ऑप्शन इनेबल है हमारा। और अगर कोई ब्लॉब डिलीट हो गया, ब्लॉब मतलब कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो डेटा है, अगर वो डिलीट हो गया, तो आप उसको 7 डेज के अंदर अंदर रिकवर कर सकते हो। उसके लिए हमें बैकअप लेने की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड यूजिंग द सॉफ्ट डिलीशन ऑप्शन। मतलब इट्स काइंड ऑफ रिसाइकल बिन की, अगर मैंने कोई डेटा डिलीट किया तो सॉफ्ट डिलीट मतलब वो रिसाइकल बिन में जाएगा स्टोरेज के, एंड 7 डेज के अंदर अंदर हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस टाइमिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करने का ट्राई करता हूँ, सपोज इफ आई वांट टू कीप इट 0, तो ये बता देगा कि मिनिमम वैल्यू हैज टू बी 1 एंड मैक्सिमम इज 365। मतलब मिनिमम आप इसको 1 डेज का कर सकते हो कि अगर कोई ब्लॉब डिलीट हो गया तो 1 डेज के अंदर अंदर रिकवरी हो जाएगी, और मैक्सिमम यू कैन कीप इट अप टू 365, मतलब पूरे 1 ईयर तक आप इसकी रिकवरी कर सकते हो। तो अगर कोई ब्लॉब डिलीट हो गया, इट इज रिकवरेबल विद इन 1 ईयर। तो दिस इज द थ्रेश होल्ड, मिनिमम 1, मैक्सिमम 365 डेज। बाय डिफॉल्ट 7 रहता है अगर आप कोई चेंजेस नहीं करते हो तो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर कंटेनर्स। तो कंटेनर अगर कोई डिलीट हो गया, यू कैन स्टिल रिकवर इट विद इन 7 डेज विच इज द डिफॉल्ट थ्रेश होल्ड, और इसको भी मैक्सिमम हम ले जा सकते हैं 365 डेज तक, मिनिमम 1, मैक्सिमम 365। सो लेट्स लीव इट 7 7, बाय डिफॉल्ट 7 पे ही रहने देते हैं। अगर आपने ये चेक बॉक्सेस हटा दिए, देन प्रोटेक्शन विल बी रिमूव्ड, सी। और फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंटल डिलीशन होता है, देन इट वॉन्ट बी रिकवरेबल, तब रिकवरी नहीं होगी। See? जो पहले के जो पहले से ही जो डेटा था इसके अंदर, जिस टाइम पे सॉफ्ट डिलीट इनेबल था, तो उनकी रिकवरीज हो जाएगी। अगर वो डिलीट हुआ है तो उनकी रिकवरीज जो भी उसका रिटेंशन पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। बट उसी बीच में अगर आपने इसको बंद किया, तो जो न्यू डेटा आपका होगा, जो भी आप एक्स्ट्रा कंटेनर या ब्लॉक्स अपलोड करोगे, दे विल बी आउट फ्रॉम द प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो उनकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। उस केस में ये आप तब बंद कर सकते हो व्हेन यू हैव इनेबल्ड द बैकअप सर्विसेज फॉर ब्लॉब्स। अगर आपने रिकवरी सर्विस बोर्ड पे बैकअप इनेबल किया है तो आप इसको बंद कर सकते हो, अदरवाइज वी नीड इट। अगर मैं रिकवरी सर्विस बोर्ड पे बैकअप नहीं ले रहा हूँ, वैसे मोस्टली कंपनी नहीं लेती है, बिकॉज स्टोरेज इज द बिग कॉस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं अगर वहां पे भी बैकअप लूंगा, देन उस जगह पे भी लूंगा, इवन दो वी हैव द ऑप्शन ऑफ सॉफ्ट डिलीट, तो इट डजेंट मेक सेंस। बट इफ देर इज ए compliance रिक्वायरमेंट, देन वी कैन गो फॉर इट। compliance रिक्वायरमेंट है, देन absolutely वी मस्ट कंसिडर दिस, अदरवाइज द सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन इज फाइन फॉर अस। तो मैं सॉफ्ट डिलीट को इनेबल रखूंगा, लेट्स लीव इट इनेबल। एंड नाउ लेट मी शो यू कि ये कैसे काम करता है। तो ये इनेबल है, 7 डेज के अंदर अंदर रिकवरी हो ही सकती है। स्टोरेज पे चलते हैं एंड लेट मी शो यू। मैं कोई डेटा डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल मूव टू द कंटेनर्स, और मैं कंटेनर के अंदर गया और मैं किसी ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, सॉल्यूशन, देन डिलीट, और इसके स्नैपशॉट को भी मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, देन डिलीट। सो माई डेटा हैज बिन डिलीटेड नाउ, मेरा डेटा डिलीट हो गया, बट बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय द सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन, सो इन इफ आई वांट टू रिकवर इट बैक, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, ओनली शो एक्टिव ब्लॉब्स। एक्टिव मतलब जो अवेलेबल है वही दिखाओ, बट इफ यू क्लिक ऑन दिस शो एक्टिव एंड डिलीटेड ब्लॉब्स, इफ यू चूज दिस ऑप्शन, तो जो ब्लॉब डिलीट हो गया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है, एंड द स्टेटस इज डिलीटेड। और इसका रिटेंशन डेज क्या है, 6, मतलब आज का डे तो निकल गया इसका, तो 6 डेज बचे हुए हैं, तो आज के डे को भी ये कंसिडर करके माइनस कर रहा है कि 6 डेज और है आपके पास रिकवरी के। इफ यू वांट टू रिकवर इट, तो इसको चेक करो, मतलब इसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद जो है यू कैन रिकवर इट बैक। कैसे कर सकते हैं,
तो यहाँ पे जाने के बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देर इज वन ऑप्शन अनडिलीट। अनडिलीट पे क्लिक करो एंड नाउ इट हैज बीन रिकवर्ड, सी सक्सेसफुली अनडिलीटेड हो गया। और अब इसको करते हैं कैंसिल एंड नाउ रिफ्रेश। और अब इसको वापस से शो ओनली शो द एक्टिव ब्लॉक्स पे लेके जाते हैं एंड यू कैन सी माई डेटा हैज बीन बैक। आ गया मेरा डेटा बैक। दिस इज हाउ यू कैन रिकवर योर ब्लॉक फ्रॉम द सॉफ्ट डिलीशन ऑप्शन। इसके अलावा मान लो मेरे से पूरा पूरा कंटेनर डिलीट हो गया, लाइक दिस इज माई कंटेनर कॉन D01। आई एक्सीडेंटली डिलीटेड दिस, सो लेट मी डिलीट। इसके अंदर मेरा डेटा था, 4 फाइल्स पड़ी हुई है, मीन्स 4 ब्लॉक्स आर देयर। कंफर्म, डिलीशन डन, कंटेनर गया पूरा। आई वॉन्ट टू रिकवर इट अगेन, इट इज इनसाइड द सॉफ्ट डिलीट प्रोटेक्शन। तो फिर से यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड शो एक्टिव एंड डिलीटेड कंटेनर्स पे क्लिक करूंगा एंड नाउ आई वुड बी एबल टू सी माई कंटेनर इन द डिलीटेड स्टेटस। इफ यू वांट टू रिकवर इट, इस पे क्लिक करो, देन इसको भी अनडिलीट कर दो। सी, अनडिलीट। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट, ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी है। अनडिलीट पे क्लिक एंड देन सेव। नाउ बोथ द स्टेटस आर एक्टिव, लॉक्स वाला तो एक्टिव था ही और कॉन्डी 01 भी आ चुका है। एंड इफ आई चूज ओनली शो मी एक्टिव कंटेनर्स, माई कंटेनर इज बैक। सो वेरी इजी ऑप्शन, इट्स वेरी वेरी सुपर इजी ऑप्शन। सो वन मोर थिंग, सपोज यू डिलीट द कंप्लीट स्टोरेज अकाउंट। अगर आपसे पूरा स्टोरेज ही डिलीट हो गया तो, और मैंने स्टोरेज का बैकअप भी नहीं इनेबल कर रखा है, जस्ट लाइक if you have enabled the backup of storage account through the recovery services vault, जैसे मैंने अभी दिखाया था blob backups, then you can recover it from there. But in case if I did not enable the backup of storage account, तो मैं क्या करूंगा और मेरे से डिलीट हो गया, like I just click on this, accidentally डिलीट हो गया। there was no lock applied, कोई लॉक लगा हुआ नहीं था तो डिलीट कर दिया किसी ने। ठीक। एंड along with the storage account, उसमें जितने भी कंटेनर्स में डेटा है, फाइल शेयर्स में डेटा है, टेबल्स में या क्यूज में डेटा है, एवरीथिंग विल गेट डिलीटेड। ये सब कुछ मैंने कर दिया डिलीट, देखो माई स्टोरेज गॉट डिलीटेड नाउ, आई डोंट हैव इट। और उसका कोई बैकअप नहीं था। लेट्स रिफ्रेश, थोड़ा टाइम लेता है सिंक होने में। गया। सो आई डोंट हैव माई स्टोरेज अकाउंट नाउ, नहीं है। अब इसकी रिकवरी कैसे करेंगे जबकि बैकअप भी नहीं है मेरे पास। So there is very good feature in the Azure cloud. When you go to the storage account, my storage has been deleted, मुझे रिकवरी करनी है, तो there is one option called restore। बिना बैकअप लिए भी आप अपने स्टोरेज अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। देर इज अ रिटेंशन पीरियड, क्योंकि ये भी सॉफ्ट डिलीट में जाता है। when the storage will get deleted, it will also go to the soft delete area, soft delete protection। so when you click on the restore, तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड है, विद इन 14 days यू कैन रिकवर योर डिलीटेड स्टोरेज अकाउंट। 14 days में जितने भी स्टोरेज डिलीट हुए हैं, दैट इज रिकवरेबल। सी, 14 days के बाद इफ यू ट्राई टू रिकवर इट बैक एंड इफ देयर इज नो बैकअप, तब आप रिकवर नहीं कर सकते। बट विद इन 14 days ऑफ थ्रेशोल्ड इट इज रिकवरेबल। तो चूज करो किस सब्सक्रिप्शन में था वो स्टोरेज, एंड चूज करो कौन सा स्टोरेज रिकवर करना है। तो यहाँ पे मेरे 2 स्टोरेज अकाउंट्स है जो कि विद इन 14 days डिलीट हुए हैं। वन स्टोरेज वॉज क्रिएटेड ऑन 7th of June, another one, oh sorry, not 7th of June, 6th of July, and another one was on 20th of July। so हमारा जो डिलीट हुआ है वो ये वाला है, देखो ये, दिस इज द करेंट स्टोरेज विच गॉट डिलीटेड बाय अस। हम इसको रिकवर करना चाहते हैं तो हम इसको चूज करेंगे, जिसको भी रिकवर करना है जस्ट चूज इट। तो डिलीशन का टाइम भी बता रहा है ये, जस्ट चूज इट एंड देन क्लिक ऑन रीस्टोर, वेरी इजी प्रोसेस। so let's wait। so recovery is successful now। if I will refresh the page, I should get my storage back।
आ गया वापस, ये देखो स्टोरेज भी आ गया। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, मेरा कंटेनर था इसमें, तो कंटेनर भी वापस आ गया होगा, जो भी डेटा था सब वापस आ जाएगा, सी। एंड कंटेनर में मेरी फाइल्स थी, दैट हैज ऑल्सो बीन रिकवर्ड। ये देखो, सुपर इजी। So this is how the backup of storage account, your blob services, your container services works. Now, let me show you how to take the backup of file shares. File shares का backup कैसे लेते हैं वो देखते हैं। तो मैं storage account में गया and let me create one file share. तो file share का backup आप ले सकते हो in the recovery services vault. We can enable it in the recovery service vault. So again, it is very easy process. Let me first create one file share. So I will go to the classic file shares option, and here there is no file share at the moment. So click on classic file share, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ FS01। देन 100 TB विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे इस स्टेज पे हमें इसका बैकअप इनेबल करना पड़ेगा। इन बाय चांस इफ यू मिस टू इनेबल इट एट द मोमेंट, अगर आप अभी इनेबल करना भूल गए, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अनचेक कर देते हो एंड क्रिएट कर देते हो, स्टिल यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स, आप इसके बाद भी इनेबल कर सकते हो। जब फाइल शेयर क्रिएट हो जाएगा, देन यू कैन क्लिक ऑन द फाइल शेयर, गो टू द बैकअप ऑप्शन, और वहां से भी जाके यू कैन इनेबल द बैकअप एनी टाइम। सो जस्ट क्लिक ऑन इनेबल बैकअप। आपका अगर कोई वॉल्ट बना हुआ है तो वॉल्ट का नाम आप यहाँ से चूज कर लो, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए न्यू वॉल्ट। ये फिर नया बनाएगा। जैसे हमारे केस में इसने डिटेक्ट किया कि अभी तक कोई भी एग्जिस्टिंग वॉल्ट नहीं था, तो इट विल क्रिएट ए न्यू वॉल्ट। सो लेट इट क्रिएट, क्योंकि हमें वॉल्ट तो चाहिए, अभी मेरे पास कोई वॉल्ट नहीं है। सो आई विल गिव द नेम RSB01 इन द पॉप रिसोर्स ग्रुप। सेम रिसोर्स ग्रुप में ही बना लेते हैं, दूसरे में बनाओगे स्टिल इट डजेंट मैटर, रिसोर्स ग्रुप कोई भी हो सकता है। बैकअप पॉलिसी ये एक नई बना रहा है, बट मैं इसको एडिट कर देता हूँ एंड लेट मी गिव इट अनदर नेम। आई विल गिव BP01, और मैं चाहता हूँ डेली बैकअप हो इसका एट नाइट 11:30 PM एज पर द इंडियन टाइमिंग। सो UTC + 5:30 चूज कर लेते हैं हम। वेयर इज द टाइम, या दिस वन। तो चूज किया मैंने, और देखो वही सब सेम सेटिंग है कि कितने टाइम के लिए इसको रिटेन करना चाहते हो। 30 डेज के लिए मैं इसको रखना चाहता हूँ। देन ओके। तो माई पॉलिसीज हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड, और इसको हम किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं। पॉलिसीज आर ऑलवेज मॉडिफिकेबल। नेक्स्ट, रिव्यू करो एंड क्रिएट कर दो। तो रिव्यू कर रहा है अभी ये। कंप्लीट इट, नाउ क्रिएट। So now my file share will be created with the backup enablement. Meanwhile, जब तक ये क्रिएट हो रहा है, let me create one of the virtual machine as well, क्योंकि मैं उसके अंदर फाइल शेयर को अटैच करूंगा। तो let me create one Windows based server in the same resource group, इसी में बना लेते हैं। I will give the name VM01, no redundancy, image has been deprecated, let me change it to Windows Server 2019, ये ले लेते हैं। 2025 में बड़े इश्यूज है। Windows Server 2019. Even if you want, you can also go with Windows Server 2025, but you have to consider some good amount of resources. वैसे 8 GB रैम में वो भी काम कर जाता है। आजकल ये यूजर नेम भी लेने लग गया है, देखो अपने आप ही एजोर यूजर के नाम से। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन मॉडिफाइड। माइक्रोसॉफ्ट वैसे भी बहुत चेंजेस करते रहता है, एवरी क्लाउड प्रोवाइडर मेक्स चेंजेस, तो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। इसको मैं प्रीमियम ही रहने देता हूँ, ओएस डिस्क। एंड डेटा डिस्क मैं ले ही नहीं रहा हूँ, तो आई डोंट नीड एनी डेटा डिस्क। नेक्स्ट, वर्चुअल नेटवर्क एक नया बना लेते हैं। आई डोंट लाइक दैट नेम, इसका नाम दे देते हैं VNet-01। लेट्स गो विद द डिफॉल्ट IP रेंजेस, और सबनेट का नाम ठीक है, यही रहने देते हैं। नेटवर्क इंटरफेस ये बनाएगा इस नाम से, लेट्स लीव इट एज इट इज। 3389 पोर्ट इज इनेबल्ड। नेक्स्ट, रिव्यू प्लस क्रिएट।
तो मेरा फाइल शेयर भी बन गया होगा, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अभी मेरा फाइल शेयर तो क्रिएट हो गया है, सी। बट अभी ये बैकअप डिप्लॉयमेंट चल रहा है इसका, सो बैकअप इज इन प्रोग्रेस। अभी तक उसमें कोई डेटा नहीं है, बट स्टिल देयर इज बैकअप डिप्लॉयमेंट गोइंग ऑन। अभी बैकअप स्टार्ट नहीं हुआ है, बैकअप विल स्टार्ट एट द शेड्यूल टाइमिंग। जो मैंने 11:30 का टाइम दिया है, बैकअप उसी टाइम होगा। बट जो बैकअप का एक्शन होता है ट्रिगर होना, दैट डिप्लॉयमेंट इज इन द प्रोसेस। तो वीएम भी क्रिएट होने का वेट करते हैं, इसके भी होने का वेट करते हैं, देन वी विल सी द ऑप्शन रिलेटेड टू द बैकअप। So let's wait. So backup enablement is done. Now let's wait for the VM to be created. फिर मैं इसको अटैच करूंगा वहां पे। So my VM is also deployed. I have my virtual machine. Let me take the remote of this. इसका रिमोट ले लेते हैं। So connect, download the RDP, open. Let me check the clipboard ताकि कुछ कॉपी पेस्ट करना हुआ तो हम कर सके। Then enter the password. Okay. So I have the remote. Now let me just connect this file share जो अभी मैंने फाइल शेयर बनाया है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे VM के साथ एज ए नेटवर्क ड्राइव। So I will go to the storage, go to the file share। तो ये फाइल शेयर मुझे दिख रहा है FS01 के नाम से, द कोटा इज 100 TB। एंड इसका भी देखो सॉफ्ट डिलीट है 14 डेज का। तो अगर मैं बैकअप नहीं भी लूंगा, स्टिल इफ इट इज डिलीटेड, तो मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ यहाँ से आके जब डिलीट होगा। अभी तक कोई डिलीट नहीं हुआ है, मैं दिखा दूंगा ये भी करके। तो इन केस यू डोंट ऑप्ट फॉर द रिकवरी सर्विसेज बोल्ड बैकअप, तब भी स्टोरेज में रिटेंशन के थ्रू आप रिकवरी कर सकते हो। नाउ आई विल जस्ट ओपन इट और मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो क्लिक ऑन कनेक्ट एंड आई विल कनेक्ट विद वाई लेटर, और इसकी स्क्रिप्ट ले लेते हैं हम। देन लेट मी कॉपी इट। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इन केस यू डोंट नो, देन यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियोस ऑफ स्टोरेज अकाउंट। जो लोग नए हैं, जिनको द पीपल हु आर नॉट continuously ऑन द चैनल, so they can refer the previous sessions in the playlist, and they will get to know about these kind of procedures। तो मैं पावर शेल ओपन करता हूँ। Here I will paste it। Now let's wait for the connection to happen। Connection is completed। Now if I go to the file explorer, तो यहाँ पे मुझे ड्राइव दिखनी चाहिए। See, I am able to see my FS01 drive and the letter is Y। 100 TB का कोटा है, इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। सो लेट मी जस्ट कीप सम डेटा हेयर। मैं इसमें कुछ डेटा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फ्रॉम माय लोकल लैपटॉप।
यहीं से कुछ कॉपी कर देते हैं, जैसे इस फाइल को ले लेते हैं, इस फाइल को ले लेते हैं, इस फाइल को ले लेते हैं, एंड इसी को ले लेते हैं। लेट मी कॉपी दिस। तो कॉपी डन। कॉपी पेस्ट हो चुका डेटा, और ये शॉर्टकट गलती से आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ यू वुड बी एबल टू सी ऑल दिस डेटा इन द एज्योर क्लाउड, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने फाइल शेयर पे जाता हूँ, एंड इन द ब्राउज आई शुड बी एबल टू सी ऑल माई डेटा। सी, अब जो है इसका बैकअप यहाँ पे अगर हम देखें रिकवरी सर्विस वॉल्ट में, सो दिस इज RSV 01। हियर if you go to the protected items, so under the backup items you will see कि हमारा यहाँ पे स्टोरेज कनेक्ट हो चुका है। स्टोरेज हैज बीन कनेक्टेड हेयर, एंड इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो ये देखो मेरा पूरा बैकअप यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड इनिशियल बैकअप इज पेंडिंग, जैसे हमारे VM के केस में था दैट फर्स्ट बैकअप विल ट्रिगर एट द टाइमिंग। जो भी मैंने शेड्यूल टाइमिंग दिया है उसमें फर्स्ट बैकअप होगा। इफ आई क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, तो मैंने 11:30 का टाइम दिया था, एट 11:30 द बैकअप विल हैपन एज पर दिस पॉलिसी। अगर मैं इस पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को टाइम दिखा देगा, सी। और मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो इफ यू वांट द इंस्टेंट बैकअप, जैसे हमने BM वाले केस में किया था कि अभी के अभी मुझे बैकअप लेना है, देन आई कैन क्लिक ऑन बैकअप नाउ एज वेल। मैनुअल बैकअप हम ले सकते हैं इसका। रिटेंशन ये 1 मंथ का दिखा रहा है, यू कैन चेंज इट मैनुअली। ओके, देन इसने बैकअप स्टार्ट कर दिया, एंड यू कैन ट्रैक द स्टेटस इन व्यू जॉब्स। व्यू जॉब्स में जाके आप देख सकते हो सेम स्टेटस। देखो बैकअप हो भी गया, ये देखो, इट वॉज वेरी फास्ट। अभी स्टिल इट इज इन द प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस में ही है। सो कॉन्फ़िगर बैकअप रजिस्ट्रेशन, एंड इफ आई क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, ये देखो स्टोरेज अकाउंट का बैकअप डन एट दिस पर्टिकुलर टाइमिंग। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस में है, इट मीन्स स्टिल स्टिल इट इज नॉट सिंक्ड प्रॉपरली। तो वेट करते हैं जब तक ये बैकअप चल रहा है। बाकी रिकवरी भी यहीं से होगी, जैसे हमने उस टाइम पे VM रिकवरी करी थी। तो इफ यू वांट टू रजिस्टर ए पर्टिकुलर शेयर, और इफ यू वांट टू रिकवर द फाइल, यू कैन डू इट। शेयर रिकवर मतलब पूरा पूरा अगर आपसे फाइल शेयर डिलीट हो जाता है तो यू कैन रिकवर इट फ्रॉम दिस ऑप्शन। अगर आपको एक पर्टिकुलर फाइल रिकवर करनी है इनसाइड द फाइल शेयर, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो नाउ माई बैकअप इज completed, लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। तो आई विल जस्ट गो टू द व्यू जॉब्स। तो यहाँ तो completed ही दिखा रहा था। रजिस्ट्रेशन, बैकअप एंड कॉन्फ़िगर, एवरीथिंग इज डन। लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। लेट मी रिफ्रेश एवरीथिंग जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सिंक्ड प्रॉपरली। तो यहाँ पे कोई पेंडिंग जॉब नहीं है, एंड लेट मी गो टू द RSV अगेन। बैकअप आइटम्स, स्टोरेज, FS 01 का बैकअप, व्यू डिटेल, सब कुछ सक्सेसफुल है। सी, बैकअप इज सक्सेसफुल। बहुत जल्दी हो गया, बिकॉज इट वाज हार्डली सम डेटा इन MB में डेटा था उसके अंदर। सो स्नैपशॉट कंप्लीट। इसमें ट्रांसफर रिकवरी सर्विस वॉल्ट वाला ऑप्शन नहीं फॉलो होता। इट विल जस्ट टेक द स्नैपशॉट ऑफ माई स्टोरेज अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर डेटा टू RSV का प्रोसेस BM में फॉलो होता है। सो नाउ लेट मी सी हाउ द रिकवरी हैपन्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टोरेज में जाता हूँ, जस्ट गो टू द फाइल शेयर, और फाइल शेयर से कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं। क्लिक ऑन दिस फाइल शेयर FS 01। ऑपरेशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बैकअप दिख जाएगा, देखो कि ये किसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका बैकअप जो है, इट इज कनेक्टेड थ्रू द रिकवरी सर्विस वर्ल्ड 01। तो आप यहाँ से भी रिकवर कर सकते हो, और RSV में डायरेक्ट जाके भी रिकवर कर सकते हो। तो आपके फाइल शेयर का बैकअप चल रहा है विद दिस स्टोरेज अकाउंट, एंड देयर इज वन रीस्टोर पॉइंट अवेलेबल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ, या फिर किसी यूजर ने गलती से डिलीट कर दिया, सपोज वो अपने नेटवर्क ड्राइव में गया, एंड फ्रॉम हियर एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड। सी,
मैंने सिर्फ डिलीट कर दिया, देर इज नो रिसाइकल बिन, देर इज नो डेटा इन द रिसाइकल बिन, नहीं है, और मेरे यहाँ से भी डिलीट हो गया होगा। सी, सो दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द बिजनेस, कि गलती से किसी एंड यूजर ने जिसके पास ये ड्राइव मैप थी उसने डेटा डिलीट कर दिया। नाउ आई नीड टू रिकवर इट बैक। तो बैकअप पे जाओ फॉर द फाइल शेयर एंड रिकवर इट। तो आपको फाइल रिकवर करनी है, देन यू कैन क्लिक ऑन फाइल रिकवरी। पूरा पूरा शेयर रिकवर करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन रीस्टोर शेयर। सो आई वांट टू रिकवर द फाइल, आई विल क्लिक ऑन फाइल रिकवरी। रीस्टोर पॉइंट सेलेक्ट करो, तो चूज करते हैं किस स्टेट पे रिकवर करना है। मुझे इस पे रिकवर करना है, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। सेलेक्ट कर लिया मैंने। ओरिजिनल लोकेशन में करना है या फिर किसी ऑल्टरनेट लोकेशन, सेम वैसे ही ऑप्शन आ रहा है जैसे वीएम के केस में था। तो मैं ओरिजिनल में करना चाहता हूँ। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब डेटा पहले से ही अगर कुछ डेटा डिलीट हुआ है और कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है पहले से ही, जैसे हमने तो सारा ही डेटा डिलीट कर दिया, बट इन केस मैंने 2 फाइल्स डिलीट करी होती और 2 फाइल्स ऑलरेडी वहां पे पड़ी होती, तो जब रिकवरी करेगा तो वो पूरे फाइल्स की दोबारा करेगा। तो उस केस में आप चाहते हो कि जो पुरानी फाइल्स है वो ओवरराइट होके जो रीस्टोर पॉइंट में उस टाइम पे थी वो वाली फाइल्स आ जाए, देन यू विल लीव इट एज ओवरराइट एग्जिस्टिंग, अदरवाइज आप स्किप करोगे। स्किप मतलब जो पुराना डेटा बचा हुआ है वो भी रहे, प्लस जो रिकवरी सर्विस बोल्ट के रीस्टोर पॉइंट में है वो डेटा भी रिकवर हो जाए, बट आई वांट टू ओवरराइट। उसके बाद ऐड फाइल्स, और आप क्या रिकवर करना चाहते हो ये देखो पूछ रहा है आपसे, तो मेरे को सब कुछ करना है। तो रिस्टोर पॉइंट में ये सारी चीजें है, आई कैन रिकवर इट, मैंने सेलेक्ट किया। सी, 99 फाइल्स मैक्सिमम रिकवर कर सकते हैं एक टाइम पे हम, तो ये तो 4 ही है। अगर 99 से ऊपर अगर फाइल्स डिलीट हो गई मान लो, तो हमें बैचेस में करना पड़ेगा फिर उसको। देन रीस्टोर, लेट्स वेट। और व्यू जॉब्स में आप देख भी सकते हो, रीस्टोर जॉब विल बी इन द प्रोग्रेस। सी, व्यू जॉब्स में जाओ और यहाँ पे दिखा रहा है ये खत्म 7:34 पे स्टार्ट हुई है एंड इट इज स्टिल इन द प्रोसेस। सी, सो लेट्स वेट। तो रिकवरी इज कंप्लीटेड, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। डन। तो अब मेरा डेटा वापस आ गया होगा। इफ आई गो टू द फाइल शेयर अगेन, आई शुड बी एबल टू सी ऑल माई डेटा बैक। सी, डेटा आ गया, एंड यूजर्स विल ऑल्सो बी एबल टू सी द डेटा इन साइड द अटैच ड्राइव। सो रिकवरी हो चुकी है। इन केस इफ आई डिलीट द कंप्लीट फाइल शेयर, अगर मुझसे पूरा पूरा फाइल शेयर डिलीट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द स्टोरेज एंड हियर इफ आई गो टू द फाइल शेयर, और अगर मुझसे ये पूरा पूरा डिलीट हो जाता है, इफ आई सेलेक्ट एंड डिलीट द शेयर, बिकॉज आई हैव द बैकअप आई कैन स्टिल रिकवर इट। सो शेयर कैन नॉट बी डिलीटेड, रिसोर्स लॉक अफेक्ट दिस शेयर, एक लॉक लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, लेट्स सी। यहाँ पे तो नहीं है, इट माइट बी ऑन द रिसोर्स लेवल। इवन प्रोटेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो अटैच द लॉक्स, यहाँ पे देख लेते हैं। ये लगा हुआ है, देखो प्रोटेक्शन लॉक लगा हुआ है अपने आप ही, मैंने नहीं लगाया, बट इट गॉट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सी, बैकअप ने अपने आप क्रिएट किया है। जब बैकअप इनेबल करते हैं हम यूजिंग द रिकवरी सर्विस बोल्ट, देन इट गेट्स क्रिएटेड। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड नाउ आई विल मूव टू द फाइल शेयर। कहाँ चला गया, ये रहा, एंड लेट मी डिलीट दिस। ये आया एंड ये डिलीट हो गया। एंटर द फाइल शेयर नेम टू कंफर्म। सो फाइल शेयर नेम था ये, लेट मी कॉपी इट, देन delete and remove the delete protections. Delete, successfully deleted. So my file share got deleted. Now I want to recover it back.
तो रिकवर करने के लिए अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू अवर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, एंड फ्रॉम हियर वी कैन गो टू द बैकअप आइटम्स, वी कैन गो टू द फाइल शेयर, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आ गया, देखो रीस्टोर शेयर, पूरा पूरा शेयर रीस्टोर करना है, क्लिक करो। ओरिजिनल लोकेशन में ही करना है, रीस्टोर पॉइंट मेरे पास एक ही है तो उसी से रिकवर करना है, उसी स्टेट पे सेलेक्ट, वैलिडेट कर रहा है, चेक कर रहा है कि रिकवरी होगी कि नहीं होगी इस रीस्टोर पॉइंट से। सो दिस रीस्टोर पॉइंट इज नॉट अवेलेबल, रीस्टोर पॉइंट नॉट अवेलेबल। अच्छा, हमने वो ऑप्शन चेक कर दिया था तो वो भी डिलीट हो गया है। नो वरीज, सी इन केस दिस सिचुएशन हैपन्स, व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि वो सॉफ्ट डिलीट में है, सो यू कैन जस्ट गो टू द फाइल शेयर। हमने जब हमने फाइल शेयर डिलीट किया था, देन एक्सीडेंटली आई चेक दैट ऑप्शन, सो विद इन 14 days ऑल्सो आई कैन रिकवर द डिलीटेड फाइल शेयर एज वेल। इसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये डिलीट हो चुका है मेरा, सो लेट मी अनडिलीट दिस, यहाँ से भी रिकवर हो जाएगा। रिकवर इज डन, सी नाउ इट हैज कम बैक। सो सारा डेटा भी आ गया होगा, देखो सी एवरीथिंग हैज कम बैक। अब अगर फाइल शेयर डिलीट हो जाता है, what workload you are running, so they are asking about this option, but this is not mandatory. Other, let me mention it as testing, रीजन दे देते हैं। वर्कलोड जनरल पर्पस फाइल शेयर था, नॉर्मल चीजें रखी हुई थी इसमें। स्नैपशॉट क्रिएशन, नाउ दे हैव मेड सम चेंजेस इन द ऑप्शन कि आप अगर फाइल शेयर डिलीट कर रहे हो, दैट टाइम इफ यू जस्ट चेक दिस बॉक्स, तो आपका जो स्नैपशॉट था दैट विल ऑल्सो बी डिलीटेड। और ये कह रहा है इफ द शेयर इज नो लॉन्गर नीडेड डिसेबल द बैकअप फर्स्ट देन डिलीट द शेयर। सो एक्सीडेंटली अगर डिलीट हो गया, मतलब एक्सीडेंटली लॉस्ट हो जाता है कहीं पे, यहाँ पे दिखना बंद कर देता है, देन यू कैन रिकवर इट फ्रॉम द बैकअप सर्विस। अदरवाइज आप मैनुअली जाके फोर्सफुली डिलीट करोगे तो जब तक इसको चेक नहीं करोगे ये डिलीट करने नहीं देगा, और इसको चेक करके अगर आप डिलीट करोगे तो आपका स्नैपशॉट जो था, जो रीस्टोर पॉइंट है, दैट विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तो आप बैकअप वाले ऑप्शन से रिकवरी नहीं कर सकते, दैट इज द लिमिटेशन। ये इन्होंने अपडेट किया है, यू हैव टू रिकवर इट फ्रॉम द सॉफ्ट डिलीट देन, जैसे मैंने करके दिखाया। तो नो मैटर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक्सीडेंटल डिलीशन हो भी जाता है, स्टिल वी आर एबल टू रिकवर इट बैक थ्रू द प्रोटेक्शन। और अगर वैसे किसी रीजन से शेयर काम नहीं कर रहा है, इट इज इफ इट इज हैविंग सम इश्यूज और समथिंग, यू आर नॉट एबल टू सी इट, यू आर नॉट एबल टू यूज इट, तो आप बैकअप से जाके देन इसको बैकडेट में रीस्टोर कर सकते हो, फिर आप पूरा पूरा शेयर शेयर रीस्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो आज मेरा शेयर काम नहीं कर रहा, बट 3 दिन पहले मेरा फाइल शेयर काम कर रहा था, सो इफ आई हैव द बैकअप ऑफ 3 days बैक, अगर मेरे पास 3 दिन पुराना रीस्टोर पॉइंट अवेलेबल है, आई कैन जस्ट गो टू द बैकअप ऑप्शन एंड आई कैन रिकवर इट इनटू द बैक डेट। मैं यहाँ पे आके जो भी मेरा रिकवरी पॉइंट टाइमिंग है मैं चूज करूंगा एंड आई विल रीस्टोर द एंटायर शेयर लाइक दिस, तब ये रिकवरी हो जाएगी। देखो जैसे मैं करके भी दिखाता हूँ, आई विल ओवर राइट द एग्जिस्टिंग वन, इसने ले लिया है, एंड रीस्टोर पे मैं क्लिक करूंगा एंड नाउ इट हैज ट्रिगर्ड द रीस्टोर। सो इफ यू वांट टू रोल बैक द सेटिंग्स, इफ द फाइल शेयर इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज में, यू कैन रिकवर द कंप्लीट फाइल शेयर फ्रॉम द बैकअप। अगर एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया है along with the snapshot, so you can always recover it through the option of प्रोटेक्टेड आइटम्स, तो आप वहां से रिकवरी कर सकते हो। इवन अगर आपने इसका बैकअप नहीं भी लिया होता फाइल शेयर का, और अगर आपसे कोई पर्टिकुलर डेटा भी डिलीट हो जाता है, स्टिल यू कैन रिकवर इट फ्रॉम द प्रोटेक्शन। तो आप इसको प्रोटेक्शन से रिकवर कर सकते हो। देर इज वन ऑप्शन हियर एज वेल, स्नैपशॉट, जहाँ पे बैकअप जब हुआ था तो उसका स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप भी स्नैपशॉट ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट वन फाइल हेयर,
मैं यहाँ पे एक फाइल, या तो इसी को ले लेते हैं, यूजर पासवर्ड पॉलिसी। हियर वी हैव सम डेटा। इसमें कुछ डेटा है, देखो इतनी सारी चीजें है इसके अंदर। मैं इस टाइम स्नैपशॉट ले लेता हूँ, लेट्स से सम इंपॉर्टेंट वर्किंग्स गोइंग ऑन, वी आर कंडक्टिंग सम टेस्टिंग। तो मेरे को स्नैपशॉट लेने के लिए बोला गया कि जितना भी डेटा है उसका स्नैपशॉट ले लो फाइल शेयर में। तो मैं स्नैपशॉट में गया एंड आई विल ऐड वन ऑफ द स्नैपशॉट हेयर, और मैंने कुछ नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, और मैंने स्नैपशॉट ले लिया। ये स्नैपशॉट मैंने ले लिया। अब इस स्नैपशॉट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसने पूरा डेटा जितना भी मेरे फाइल शेयर में है सबका स्नैपशॉट ले लिया। अब क्या हुआ, टेस्टिंग में या किसी रीजन से ये जो फाइल थी मेरी, ये मेरे से मॉडिफाइड हो गई, मतलब इसमें मेरे से सारा डेटा डिलीट हो गया और मैंने लिख दिया दिस इज माय टेस्ट एंड आई विल सेव इट। ये कर दिया मैंने इसको सेव। अब ये सेव हो गया, और अब इसको जब ओपन करके मैं देखूंगा, सो आई लॉस्ट माय डेटा। अब तो ये मेरा जितना भी डेटा था सब लॉस्ट हो गया। सो इफ यू हैव द स्नैपशॉट, क्योंकि ऐसे क्रिटिकल फेजेस में इफ यू हैव क्रिएटेड द स्नैपशॉट तो आप वहां से भी बैकडेट रिस्टोरेशन कर सकते हो। अदरवाइज इफ द स्नैपशॉट इज नॉट देयर देन स्टिल इफ यू हैव द बैकअप तो आप बैकडेट पे रिस्टोर कर सकते हो। बट बैकडेट में रिस्टोर जब आप करोगे तो जिस डेट एंड टाइम का आपके पास बैकअप होगा उसी डेट में रोल बैक करेगा, तो उस स्टेज में जितना बीच का डेटा होगा दैट यू विल लॉस्ट, दैट इज योर आरटीओ। तो वापस से स्नैपशॉट से रिकवरी करनी है, तो फिर मैं वापस फाइल शेयर में जाऊंगा। आई विल मूव टू द स्नैपशॉट, ये वाला स्नैपशॉट था मेरा जो मैंने अभी मैनुअल लिया था। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ से जो भी आपको रिकवर करना है, जैसे आई वांट टू रिकवर दिस फाइल, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई विल रीस्टोर, और रीस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन करूंगा मैं, ओवर राइट ओरिजिनल, देन ओके। तो अब मेरी फाइल वापस आ गई होगी। सी, इफ आई जस्ट ओपन इट, my data is back. See, this is how it works. So now we have concluded the backup topics. We have discussed the virtual machines backup, data backups, on-premises backups, the blob services backups, file shares backups. So all the all the topics have been successfully completed, and I hope you understood it. In case you will have any doubts, you can always reach out to me via my email ID, which is mentioned into the description box. And if you are liking my video, don't forget to subscribe the channel, hit the notification bell icon. I will see you in the next session with the new topic. So thank you very much for your timing. Now let's sign off.